Hello students, welcome to my channel. I am going to start a new video series. This is for RD Sharma exercise solutions. So today will be the first lecture. In this video, I am going to discuss exercise 1.1. This is my live class schedule. Please do join and please share with us. Yes, the one more disclaimer here, like I am not going to solve NCERT questions which already I have solved in my NCERT solution series. So if you want to see the solution for NCERT questions, please do visit my NCERT solution series. Link will be in description. So coming to the first question. Here what is saying that four relations are there. We need to check whether the relations are reflexive, symmetric or transitive. So coming to the first one, R1. Here R1 is A, B, A, C, B, B, C, C, A, C, B and C, C. Okay. तो we need to check the reflective. तो हमें definition से क्या पता है कि A belongs to R for all A belongs to A. Then R is reflexive. Reflective. तो अगर A, B belongs to R implies B, A belongs to R. That means symmetric. Again A, B belongs to R. B, C belongs to R implies A, C belongs to R. Then transitive. Transitive. Okay. So now we will take here. See here A, B, B are there. Okay. A, B, B are there and C, C also. So A, B, B, C, C belongs to R. So this means R is reflexive. अभी हम चेक करेंगे कि सिमेट्रिक. तो सी A, B belongs to R but B, A does not belongs to R. So this means not symmetric. अब देखो ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव A, B belongs to R, B, C belongs to R, but A, C does not belongs to R. So this means not transitive. So the first one R1 is only reflexive. ठीक है? So I hope it is clear to everyone. Moving to R2. So R2 is equal to given is A, A. ठीक है? तो एक ही एलिमेंट है इसमें. तब देखो रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ये चेक करनी है ना. फाइंड वेदर और नॉट रिफ्लेक्टिव. हाँ ठीक है. चलो R2 is symmetric, transitive or not reflective ये चेक करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल only A, A is there, but B, B does not belongs to R. C, C does not belongs to R. So not reflexive. ओके. अब देखो सिमेट्रिक. तो A, A एक ही एलिमेंट है ना. A, A belongs to R. इसमें एक ही एलिमेंट है. तो इसका उल्टा मतलब वो भी A, A belongs to R. So this means symmetric. Similarly transitive. ये so R2 is symmetric and transitive but not reflexive. Okay. R2 is symmetric and transitive but not reflexive. So I hope these also clear. Now moving to R3. R3, see, R3 is given B, C. Okay. So here, see, B, C means ये तो रिफ्लेक्टिव नहीं हो रही है ना. नॉट रिफ्लेक्टिव.
सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि C, B डज नॉट बिलोंग्स टू R3, नॉट रिफ्लेक्टिव, नॉट सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए चेक करने का कोई है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है। इसमें भी जैसे हमने लिखे थे ट्रांजिटिव चेक करने के लिए कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली आइदर ट्रांजिटिव हो सकता है। ओके, नाउ मूविंग टू R4. R4 is saying that A, A does not belongs to R, so this means not reflective. Okay, अब देखो A, B belongs to R, but B, A does not belongs to R, so this means not symmetric. Okay, अब देखो A, B belongs to R, B, C belongs to R, but A, C does not belongs to R, so this means not transitive. Clear? So first question is done. Now moving to the question number 6. Here, see what is saying. Test whether the following are reflective, symmetric, and transitive. So R1 on Q0. R1 on Q0 defined by A, B belongs to R1 implies that A equal to 1 by B. तो चलो इसमें चेक करते हैं। R1 से Q0, Q0 means this is the rational number which are excluding 0. Okay, तो चलो A, B belongs to R1 implies A equal to 1 by B. ये है हमारे रिलेशन। तो देखो A, A belongs to R, this means A is equal to 1 by A. पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो दिस मीन्स नॉट रिफ्लेक्टिव, दिस मीन्स नॉट रिफ्लेक्टिव। तब देखो A, B belongs to R, this is equal to A equal to B. This implies A, B belongs to R1. अब देखो B, A, this means B, A belongs to R1 means implies B is equal to 1 by A. यहाँ से क्या आ रहा है, हम लिख सकते हैं ना B is equal to 1 by A, तो that means R1 is symmetric. अब देखो ट्रांजिटिव, A, B belongs to R1 implies A equal to 1 by B. B, C belongs to R1 implies B is equal to B, C belongs to R1 implies B equal to 1 by C, right? B is equal to 1 by C. अब देखो यहाँ से क्या आने वाला है, A is equal to 1 upon 1 by C, तो C आ गया ना, A equal to C, not equal to 1 by C. So therefore A, C does not belongs to R1 implies that not transitive. Okay, so this is symmetric but neither reflective, not transitive. Okay, moving to question number 2. Here what is saying A, B. तो देखो A minus A equal to 0. This is less than 5. So A, A belongs to R2. This means R2 is reflective. Okay. अब देखो क्या है कि A minus B, हाँ, तो A mod of A minus B less than or equal to 5 implies that mod of B minus A also less than or equal to 5. So therefore A, B belongs to R implies B, A belongs to R2. So this means symmetric. अब देखो दिखाना है कि ट्रांजिटिव, तो mod of A minus B less than or equal to 5, mod of B minus C less than or equal to 5. तो mod of A minus C is equal to mod of A minus B plus B minus C. This means less than or equal to mod of A minus B plus mod of B minus C. So this is less than or equal to 5 plus 5, so 10. But this is not less than 5. So therefore not transitive.
So this function is reflexive, symmetric, but not transitive. Coming to R3. So see, a square, a comma a, for a comma a, what will be a square minus 4a into a plus 3a square. So this is equal to 4a square minus 4a square is equal to 0. So this means a comma a belongs to R3. So reflective. अब देखो सिमेट्रिक, a comma b belongs to R implies a square minus 4ab plus 3b square equal to 0. तो अगर b comma a belongs to R होने के लिए क्या होनी चाहिए, b square minus 4ab plus 3a square not equal to 0. ये तो नहीं है, that means b comma a does not belongs to R, therefore not symmetric. अब देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करनी है हमें, तो a comma b belongs to R implies R3 implies a square minus 4ab plus 3b square equal to 0. अब देखो b comma c belongs to R3 implies b square minus 4bc plus 3c square is equal to 0. नाउ यहाँ से क्या नहीं है हमें, a comma c belongs to R, इसका मतलब क्या, a square माइनस 4ac दिखानी है, लेकिन नहीं पॉसिबल है, यहाँ से कोई भी तुम एक्सचेंज कर लो, पॉसिबल नहीं है, therefore a comma c does not belongs to R3, so not transitive. This is reflective but not symmetric and transitive. Okay. Moving to the fourth question. What is saying here कि R1, R2, R3 again same thing, तीन रिलेशन है, इसमें दिखानी है क्या कौन सा रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बन रहा है. तो देखो R1 पे चलते पहले, तो R1 क्या है, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 3, 3. ओके, तो यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, तो therefore R1 is reflective. अब देखो 1, 3, 3, 1 तो है, लेकिन इसमें 2, 1 एलिमेंट है, 2, 1 belongs to R1, but 1, 2 does not belongs to R1. This means not symmetric. ठीक है. अब देखो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या है ना, यहाँ से 1, 3 ले सकते हैं हम, 1, 3 and 3, 1 and then हमें दिखाना है कि ये ट्रांजिटिव और नॉट. तो देखो इसमें से कोई भी एक एलिमेंट ले लो, 2, 1 belongs to R1, 1, 3 belongs to R1, but 2, 3 does not belongs to R1. So this means not transitive. So function is reflective but not transitive. ठीक है. So now moving to second question. What is saying here in the second question? R2. R2 कैसे दिख रहा है यहाँ पे देखो, 2, 2, 3, 1, 1, 3. ओके, तब यहाँ पे 1, 1, 3, 3 नहीं है, 1, 1 does not belongs to R2, 3, 3 does not belongs to R2. This means R2 is not transitive. Sorry, reflective. Extremely sorry, it's not transitive, it's reflective. Now, see, 3, 1 belongs to R2 and 1, 3 belongs to R2. So, R2 is symmetric. Okay. अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं. तो 3, 1 belongs to R3, 1, 3 belongs to R3, but 3, 3 does not belongs to R3, so not transitive. So the function is, the relation is basically is symmetric but not reflective and transitive. Now moving to R3, 1, 3, 3, 3. ये है सिर्फ, तो देखो इसमें 1, 1 does not belongs to R3, so this means not reflective.
अब देखो 1,3 बिलोंग्स टू R3 बट 3,1 does not belongs to 3,1 does not belongs to R3. This means not symmetric. Now the transitive 1,3 belongs to R3, 3,3 belongs to R3. तो यहाँ से क्या आ रहा है, ये A है, ये B and C, तो 1,3 belongs to R3, ये तो है, therefore transitive. I hope you all understood this question. Now moving to the fifth question. Again same thing, what we'll do, basically the reflexive symmetric transitive दिखानी है हमें. तो देखो फर्स्ट वन, A is related to B if A minus B is greater than 0. तो अगर A minus A, this is equal to 0, not greater than 0, therefore not reflexive. Okay, now A minus B is greater than 0. This implies minus B plus A is greater than 0. माइनस कॉमन लेते हैं, B minus A is greater than 0. तो क्या हो जाएगा, B minus A is less than 0, not greater than 0, therefore not symmetric. ठीक है. Now A minus B is greater than 0. This means A is greater than B. A comma B belongs to R. Now B comma C belongs to R implies that B is greater than C. So combining these two equations क्या आएगा, A is greater than C. Therefore A comma C belongs to R. So transitive. So क्या हो रहा है, reflexive, not symmetric but transitive. अब देखो नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है यहाँ पे, A रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली 1 plus AB इज ग्रेटर देन 0. तो देखो 1 plus AB ग्रेटर देन 0, ये है हमारी रिलेशन. अगर A दोनों एलिमेंट है तो 1 plus A स्क्वायर, ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो दिस इज ग्रेटर देन 0. देयरफॉर A comma A belongs to R implies reflexive. ओके, अब देखो A comma B belongs to R implies 1 plus AB is greater than 0. This implies 1 plus BA is greater than 0. This means B comma A belongs to R. So symmetric. ठीक है. अब देखो ट्रांजिटिव 1 plus AB greater than 0. A comma B belongs to R implies this. 1 plus BC greater than 0. B comma C belongs to R implies this thing. अभी क्या करनी है हमें, 1 plus AC, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो AB ग्रेटर देन -1, यहाँ से क्या आएगा, BC ग्रेटर देन -1. तो बेसिकली क्या आ रहा है, A इज ग्रेटर देन -1 by B, C इज ग्रेटर देन -1 by B. अब देखो A इंटू C क्या होगा, ग्रेटर देन 1 by B. सो हमें क्या आएगा यहाँ से, नॉट ग्रेटर देन 1 by B. ठीक है, सो नॉट ट्रांजिटिव. तो बेसिकली हमें क्या दिखानी थी, बेसिकली यहाँ से A ग्रेटर देन -1 by B, C ग्रेटर देन -1 by B आ रहा है, तो AC ग्रेटर देन -1 प्रूफ करनी थी ना, तो AC ग्रेटर देन -1, तो बेसिकली C ग्रेटर देन -1 by A, तो आ नहीं रहा है यहाँ से, तो नॉट ट्रांजिटिव. सो द फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव. नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट, mod A means this is equal to A. ठीक है, तो दिस इज mod A is equal to, अगर A कम A मानते हैं तो mod A is equal to A, but this is not less than A. mod वैल्यू इज हमेशा, अगर देखो A इक्वल टू -1 मान लो, तो mod A वैल्यू इज 1, तो 1 इज ग्रेटर देन -1 नो, तो ये ट्रू नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव. अब देखो सिमेट्रिक, mod A is less than or equal to B, A comma B belongs to R implies, अब देखो B comma C belongs to R implies mod B is less than or equal to C. ओके, तो एग्जांपल लेते हैं कि अगर देखो mod A is less than B, तो ठीक है, mod A B से छोटा हो गया है, B इक्वल टू अगर मान लो 3 है और A इक्वल टू -1 है, तो
1 इज लेस देन C, बट अगर C इक्वल टू 2 है तो क्या बोल सकते हैं हम, C इज नॉट लेस देन 2 ना, C इज नॉट लेस देन 2, तो ये ट्रू नहीं है, तो नॉट। एक मिनट, मुझे प्रूफ करनी थी बेसिकली यहाँ पे सिमेट्रिक, मैंने ट्रांजिटिव पे चली गई थी तो ये इसीलिए लग रहा था। चलो मैं प्रूफ करनी है कि सिमेट्रिक, पहले सिमेट्रिक है या नहीं, देन ट्रांजिटिव पे मूव होता है। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, B कॉमा A बिलोंग्स टू R दिखानी है, तो यहाँ से क्या आएगा, B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड A, तो मॉड B इज नॉट लेस देन A, तो देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। हाँ, तो अब देखो कि mod A comma B belongs to R implies mod A is less than or equal to B. B comma C belongs to R implies mod B is less than or equal to C. हाँ, तो यहाँ से क्या आएगा, इसका मॉड्यूलस ले लो फिर से, mod of mod A लेस देन और इक्वल टू mod B, इसका मतलब क्या, mod A लेस देन और इक्वल टू mod B, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, फिर mod ले रहे हैं हम, ये भी पॉजिटिव ही बनेगा, लेस देन और इक्वल टू C, तो क्या आएगा, mod A is लेस देन और इक्वल टू C, यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, A comma C belongs to R, hence transitive. This is transitive but neither reflexive nor symmetric. Okay. Now moving to the 8th question, as 6 and 7 questions both are NCERT questions, so I am not solving that one in this video. So in 8 questions, what is saying now? Prove that every identity relations on a state is reflexive, but the converse is not necessarily. So अगर identity relation मान लो, let I be the identity relation on a set A. Identity relation on a set A. ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होती है, बेसिकली सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही जैसे दिखते हैं, मतलब A कमा A बिलोंग्स टू I फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A. ओके, सो दिस मीन क्या, I इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन तो यही बोलता है ना, हेंस प्रूव्ड। अब देखो कॉन्वर्स, कॉन्वर्स कॉन्वर्स के लिए हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो A इज इक्वल टू 1 2 3, R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 3. ओके, तो ये सारे एलिमेंट्स तो है, तो A कमा A बिलोंग्स टू R implies reflexive, but 1 comma 3 also belongs to R. This is not identity. Okay, so converse is not true always. So I hope you all understood this question. Now moving to the next question. Question number 9. Question number 9 is the NCERT exemplar question. तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का एग्जांपल देनी है, बेसिकली क्या है, देखो A में A इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, इसका एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम, आर कैसे लिख सकते हैं, रिफ्लेक्सिव बोला है तो 1 1 2 2 3 3 4 4, ये तो रहेगा ही, इसके साथ क्या बोला है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो 1 1 है, 1 2 ले लो, 1 1 बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, देन अगेन 1 2 बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल हो गया है ये सिमेट्रिक नहीं है, देखो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक बोला है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, कार को कैसे ले सकते हो, 1 2 2 1, ओके, बाकी देखो रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं क्योंकि ये एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे, और ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब देखो 3, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों ही हो रहा है यहाँ पे, तो तीनों हो रहा है, मतलब ये दोनों का कंबाइन कर दो बेसिकली, 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 2 1, तो देखो ये सारे एलिमेंट्स है तो रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब सिमेट्रिक। अब देखो 1 2 2 1 है तो 1 1 होनी चाहिए, ये भी है तो
रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 ये 2014 में आया था। क्या करनी है हमें? फाइंड द डोमेन एंड रेंज एंड वेरीफाई वेदर आर इज रिफ्लेक्टिव। तो पहले देखो y इज इक्वल टू क्या होगा 41 माइनस 2x, x एंड y निकालते हैं, थोड़ा बहुत निकालेंगे हम। x इक्वल टू अगर 1 है, नेचुरल नंबर बोल रहे हैं तो 1 से स्टार्ट होगा, x इक्वल टू 1 है तो 39, x इक्वल टू 2 है तो 4 माइनस होगा 37, x इक्वल टू 3 है तो 6 माइनस होगा 35, x इक्वल टू 4 है तो 4 टू 8 मतलब 33। ओके, तो ऐसे जाएगा पूरा। लास्ट देखो x इक्वल टू क्या हो सकता है 20, x इक्वल टू 20 हो सकता है, तो यहाँ पे 1। ओके, तो क्या आ रहा है देखो r में प्यार क्या आएगा 1,39, 2,37, 3,35, 4,33 एंड सो ऑन टिल 20,1। ये हो गया हमारी पूरा रिलेशन। अब देखो क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देखनी है हमें। तो ऑब्वियसली नॉट रिफ्लेक्टिव, क्योंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू अस। ओके, अभी देखो सिमेट्रिक, यहीं पे क्या क्या एलिमेंट्स है देखो 1,1, 1,2 बिलोंग्स टू अस बट 1,39 belongs to us, but 39,1 does not belongs to us, so not symmetric। अब देखो ट्रांजिटिव है या नहीं है ये चेक करनी है, नाइदर रिफ्लेक्टिव नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करनी है। अब देखो 1,39 belongs to us, but there is no element to check transitivity, no element to check transitivity। ओके, तो देखो इसमें डोमेन क्या हो गया है, डोमेन के एलिमेंट सारे x के एलिमेंट्स इन डोमेन, तो डोमेन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन टिल 20। रेंज मतलब y की एलिमेंट, तो 39, 37 एंड सो ऑन टिल 1। ये हो गया हमारी कंप्लीट क्वेश्चन। अब चलो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इज इट ट्रू एवरी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव? नो, इट्स नॉट ट्रू। हम हमेशा ये नहीं बोल सकते, इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। मान लो r इज इक्वल टू a इक्वल टू 1 to 3, r इक्वल टू 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। ओके, तो देखो 1,2 बिलोंग्स टू r implies 2,1 बिलोंग्स टू us, so this means symmetric। अब देखो 1,2 बिलोंग्स टू us, 2,1 belongs to us implies 1,1 belongs to us, so transitive। But 3,3 does not belongs to us, this means not reflexive। I hope you have understood this example। Moving to next question, question number 12। Here what is saying, an integer m is said to be related to another integer n if m is multiple of n। Okay, check if the relation symmetric, reflective and transitive। तो चलो देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। 12th क्वेश्चन, एक दूसरे का मल्टीपल बोला है ना। 12 यहाँ पे बोल रहा है कि another m is said to be related to another integer n if m is multiple of n, that means m is equal to k into n, where k is any integer, k is any integer। ठीक है, तो देखो अगर देखो यहाँ पे m and m दोनों टर्म है, m and n दोनों टर्म सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं ये रिफ्लेक्टिव और नॉट। m इक्वल टू k इंटू m, इसका मतलब क्या है देखो m इक्वल टू k इंटू m। इसमें क्या हो रहा है देखो, तो बेसिकली ये जो m टर्म है ये कोई भी टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो रही है या नहीं हो रही है ये देखनी है हमें। इफ द रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांजिटिव एंड इंटीजर m is said to be related to another integer n
इफ m इज मल्टीपल ऑफ n। तो देखो एक नंबर सेम नंबर के साथ मल्टीपल हो रहा है या नहीं, तो एग्जांपल से देखते हैं। सेम नंबर है ना, तो हम लिख सकते हैं ऐसे 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ये तो होगा, लेकिन इसमें 4 है तो सेम नंबर के मल्टीपल हाँ लिख सकते हैं। देखो 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 4, ठीक है, 1 से एक मल्टीपल हो ही सकता है, होता ही है ना डिवाइडर। तो m इज इक्वल टू k इंटू m, ये हो गया है therefore m कॉमा m बिलोंग्स टू r। ओके, तो ये एग्जांपल मैं हटा देती हूँ क्योंकि ये इसमें जरूरत नहीं है। तो therefore r इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक प्रूफ करनी है हमें, तो m कॉमा n बिलोंग्स टू r implies that m is equal to kn। ओके, अब देखो n कॉमा m है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 बाई k इंटू m। तो 1 बाई k भी तो एक इंटीजर ही होगा ना, इसका तुम दूसरा नाम दे दो, मान लो k डैश, तो क्या हो जाएगा k डैश इंटू m, तो ये भी तो बिलोंग हो ही रहा है, ये k डैश बिलोंग हो रहा है या नहीं ये देखनी है हमें। तो देखो मान लो तुम्हारे पास एक टर्म है ऐसे कोई 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 6। तो ये सिमेट्रिक हो रही है या नहीं ये चेक करनी है, लेकिन हमेशा सिमेट्रिक होने वाला है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर बोला है, अनदर इंटीजर। तो अगर ये भी इंटीजर होगा तो ये तो 1 बाई 2 ये आ रहा है ना, इंटीजर नहीं बनेगा, तो नॉट सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए m कॉमा n बिलोंग्स टू r implies m इज इक्वल टू kn। ओके, अब देखो n कॉमा r बिलोंग्स टू, तो दिस implies n इज इक्वल टू kr। अब देखो m इज इक्वल टू क्या होगा, n के जाएगा k स्क्वायर r, ये एक इंटीजर बनेगा, तो ट्रांजिटिव। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग। दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बेसिकली, show that the relation greater than or equal to on the state R is reflexive and transitive but not symmetric। हाँ चलो, तो A is greater than or equal to B मानते हैं, ठीक है, A related to B। तो देखो इसमें क्या है, अगर A is equal to A, ये तो हमेशा ट्रू है ना, तो दिस मीन रिफ्लेक्सिव, ग्रेटर देन नहीं हो रहा है लेकिन इक्वल तो हो रहा है ना, एक कंडीशन से सेटिस्फाई हो रही है, रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक, A is greater than or equal to B, A comma B belongs to R implies that this implies B is less than or equal to A। okay, but we need to prove B is greater than or equal to A। तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो therefore B comma A does not belongs to R, this implies not symmetric। अब चलो देखते हैं ट्रांजिटिव, तो A comma B belongs to R implies A is greater than or equal to B, B comma C belongs to R implies B is greater than or equal to C। तभी प्रूफ क्या करनी है, A comma C। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, A is greater than or equal to B, greater than or equal to C, so this means A is greater than or equal to C। तो हम क्या लिख सकते हैं, A comma C belongs to R, therefore R is transitive। So we have proved this thing, it is reflexive and transitive but not symmetric। Now moving to next question। Question number 14 was the NCERT question, so I am moving to 15th question। तो यहाँ पे क्या है कि ये देखो हमें नंबर ऐड करनी है, तो जिससे ऑर्डर पे ऐड करनी है बेसिकली, जिससे जो इनवर्स रिलेशन आएगा वो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव बन सकता है। तो हमारे पास क्या है अभी 1,2 है एंड 2,3 है, तो हमें क्या करनी है बेसिकली, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हम क्या करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 2,2 3,3 ऐड करेंगे। अब देखो 1,2 ऑलरेडी है तो 2,1 ऐड करेंगे, 2,3 ऑलरेडी है तो 3,2 ऐड करने वाले हैं। अब देखो 1,3 3,1 भी ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ से देखो क्या आएगा, 1,2 बिलोंग्स टू आर, 2,3 बिलोंग्स टू आर, देन 1,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव हो गया है। ये सारे है तो रिफ्लेक्सिव हुआ है। अब देखो ये है, इसका अपोजिट भी है तो 2,1 भी है सेम, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। Now move to the next question।
Question number 16, 10 question, 10 type question. So what is the minimum order pair we can add so that it may become a transitive relation only? तो ट्रांजिटिव बनानी है हमें, तो यहाँ पे क्या है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,3 बिलोंग्स टू आर है, हमें क्या चाहिए, 1,3 बिलोंग्स टू आर चाहिए, तो हम ऐड कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, 1,2, 1,1, 2,3 एंड 1,3. ओके, तो what minimum number order pair? So only one order pair we added. Only one ordered pair we added. Clear? अब मूव होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17. यहीं पे देखो क्या बोल रहे थे, राइट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स टू बी एडेड आर मेकिंग रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव बनानी है तो a, है तो b, भी चाहिए, c, भी चाहिए. अब देखो ट्रांजिटिव बनानी है तो a, b बिलोंग्स टू r ऑलरेडी है, b, c बिलोंग्स टू r भी है, तो हमें क्या चाहिए, a, c बिलोंग्स टू r, तो ये ऐड करना पड़ेगा हमें. तो r इज इक्वल टू a, b, c, a, b ऑलरेडी है तो हम ऐड कर रहे हैं a, c, उसके साथ साथ क्या बनानी है, रिफ्लेक्सिव, तो b, भी ऐड करेंगे, c, भी. हम ये तीनों एलिमेंट ऐड किए हैं तो our फंक्शन, ये रिलेशन क्या हो गया है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव. नाउ विल मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. तो चलो फर्स्ट वन क्या बोल रहे हैं कि फिर से हमें चेक करनी है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. तो देखते हैं फर्स्ट वन. तो देखो x एंड x दोनों टर्म है, x ग्रेटर देन x नॉट पॉसिबल, सेम टर्म 1 इज ग्रेटर देन 1 नॉट पॉसिबल, तो नॉट रिफ्लेक्सिव. डिवाइड कर लेते हैं इसको. अच्छा चलो पहले इसको पूरा अच्छे से डिवाइड कर लेते हैं तो दोनों सॉल्व हो जाएगा एक ही साइड पे. तो देखो x इज नॉट ग्रेटर देन x, दिस मीन्स x, does not belongs to us, this means not reflexive. Okay, अब देखो सिमेट्रिक, x, y belongs to us implies x is greater than y. This implies y is less than x, but y not greater than x. This means y, x does not belongs to us, so therefore not symmetric. अब देखो ट्रांजिटिव, x, y belongs to r implies x greater than y, y, z belongs to r implies y greater than z. यहाँ से क्या आएगा, x greater than y greater than z. This implies x is greater than z, so x, z belongs to r. So this is transitive. हो गया. So this is not reflective and symmetric, but it is transitive. Now we'll move to the part 2. सेकेंड चैप्टर क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे x plus y equal to 10. तो देखो क्या आने वाला है, x, y दोनों नेचुरल नंबर, तो 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 3, 7, 7, 3. तो यहाँ पे देखो 7, 3 हो गया है, 8, 2, 9, 1. ओके, तो यहाँ से r क्या बन रहा है, बेसिकली 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6, 5, 5, 6, 4, 7, 3, 8, 2, 9, 1. तो यहाँ पे देखो सिर्फ 5, 5 बिलोंग्स टू, बाकी सारे टर्म नहीं है, तो नॉट रिफ्लेक्सिव. अब देखो जितना टर्म है ये सारे सबके सब उल्टा भी है, तो सिमेट्रिक. अब देखो ट्रांजिटिव चेक करनी है हमें, 1, 9 बिलोंग्स टू आर, 9, 1 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 1 does not belongs to us, so not transitive. Okay, so this function is only symmetric, बाकी दोनों नहीं हो रहे हैं. अब देखो पार्ट 3 एंड 4 ये सॉल्व करते हैं. पार्ट 3 पे क्या बोल रहे हैं, x, y is an integer, स्क्वायर इंटीजर. पार्ट 3 पे बोल रहा है कि इट्स एन स्क्वायर इंटीजर. x, y is a square of an integer. Okay, तो x, y is equal to
m स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, x कॉमा y बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो देखो x एंड x दोनों के लिए क्या होगा, x स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो m स्क्वायर, सम टर्म की होल स्क्वायर, तो देयरफॉर x कॉमा x बिलोंग्स टू r, सो रिफ्लेक्सिव। अब देखो x कॉमा y इक्वल टू m स्क्वायर implies that y into x equal to m square, therefore y comma x belongs to r, so symmetric। ठीक है, तो अब चलो x comma y belongs to r implies xy equal to m square, y comma z belongs to r implies yz is equal to m square। अब देखो x into z क्या है कि x y स्क्वायर पूरा मल्टीप्लाई करते हैं z स्क्वायर z इक्वल टू m पावर 4। ओके, तो आप देखो यहाँ से क्या आएगा, एक्स जेड इज इक्वल टू एम पावर 4 बाई वाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई नेचुरल नंबर, तो ये भी टर्म भी पूरा इंटीजर हो जाएगा, तो ये मान लो एन स्क्वायर, तो एक्स जेड इक्वल टू एन स्क्वायर, देयरफॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या आएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स बाई 4। तो चलो एक्स वाई फाइंड कर लेते हैं पहले। x इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई दोनों ही 1, तो x इक्वल टू 1 मतलब क्या आएगा, 9/4, इंटीजर नहीं है तो 4 से डिविजिबल है, ऐसे टर्म चाहिए। x इक्वल टू 2, तो 8/4 to 2। x इक्वल टू 3 से नहीं होगा, x इक्वल टू 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से, x इक्वल टू 6 में 4, तो ये 1, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 2 आएगा, 2/4, 9, x इक्वल टू 9 मतलब ये भी नहीं हो रहा है, x इक्वल टू 10 मतलब ये 0 हो जाएगा, लेकिन 0 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे r क्या बन रहा है, 2,2, 6,1, सिर्फ यही है। अब देखो और भी टर्म्स हम निकाल सकते हैं या नहीं, नहीं निकाल सकते, 1,6 नहीं, तो देखो ये सिमेट्रिक तो है नहीं, सिर्फ 2,2 है, बाकी टर्म्स नहीं है। और क्या है कि 1,1, 2,2, सिर्फ 2,2 है, इसका मतलब ये नॉट रिफ्लेक्टिव। ठीक है, तो इसमें और टर्म्स होने वाला है, x इक्वल टू 8 से क्या होगा, 2, 2/4, 1/2, 1/2 नॉट नेचुरल नंबर, तो नहीं होगा, 9, 10 से भी नहीं होगा। ठीक है, चलो नॉट रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक भी नॉट सिमेट्रिक, सिर्फ 2,2 है। और देखो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये ट्रांजिटिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखनी है हमें। तो बेसिकली देखो 2,2 है, 2,2 बिलोंग्स टू आर, फिर से 2,2 भी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो इसका मतलब हम यहाँ रख सकते हैं कि एक तो टर्म है ऑलरेडी, तो जिसके लिए ये ट्रांजिटिव बन रहा है, तो ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये सिर्फ ट्रांजिटिव हो गया है, नॉट रिफ्लेक्टिव, नॉट सिमेट्रिक। अब चलो, yes guys, so this is it for today's class. We have done for exercise 1.1. This is my Teachmeet profile. Those who want paid classes, you can follow me on Teachmeet. This is my regular live class schedule on my YouTube channel. It's free live classes. Everyone please do join and please share with others. Thank you for watching my video. Those who are new to this channel, don't forget to subscribe my channel and please share with your friends.